Good morning, ma'am. Hi, good morning. Very Good good morning, morning. ma'am. Good A very, morning, very happy, magical morning. beautiful, pleasant morning. Good Thank morning, ma'am. you. The weather is so beautiful over here. Good morning, Yeah. ma'am. Good morning. Well, the weather, so my son is telling me that, like this is the best summers we've ever had, the most pleasant summertime. Yes, This everywhere, time, even in every time. Jaipur. Yeah. Yesterday it was hot, and today again a beautiful morning of windy, peaceful Yeah, morning. it's nice and cloudy. I hope all of us did our full moon meditation and scripting yesterday. I mean, I didn't remind, but then I thought that everybody knows. I don't know, for whatever reasons, yesterday's full moon was called strawberry full moon. I don't know why it was called strawberry full moon, but it was very nice, powerful moon. And it was like something like a partial eclipse and huge movement into the space yesterday. So, well, I did my scripting in all the 5 major areas. So I segmented work and money and, relationships and all of that. And I did my bit yesterday before I went to bed. So because full moon mein वैसे भी करना होता है ना. Ma'am, today is Purnima, I think. No, it is on 3rd. It was on 3rd. I It mean, was like, yeah, it continues. It becomes like that. So you can do that today morning also. I think it is there till about afternoon. We have to do it. We didn't do Yeah. yesterday. You can do it today in the morning. I mean, it continues, the full moon continues. The effect of the full moon lasts for about 2 days after the full moon also. I mean, 2 days before and 2 days after. So, Ma'am, even if we can't see, then also we can write. yeah, of course, it's still there, no, somewhere. It's just that because of the sun, we are not able to see it. It's just that. Otherwise, the stars and the moon, everything is still there in the sky. I mean, the effect and the magnetic effect is there, but you can try and do it in the evening, like, when the moon arises, like when you can see it. I mean, it's going to be cloudy today. You may not be able to see it. But yeah, I mean, like the moon is there right up. We can feel and visualize. Like you can see the light of it at least. No, it was very powerful also. It was very strong But light. yesterday it was very beautiful. Yeah, Very very beautiful. beautiful. Very means wonderful. Yeah. So in fact, today's chapter, why I remembered full moon is today's chapter is aligned with that only. It is called the magical air that you breathe. So this is actually saying thank you to the entire cosmos, to all the planets, to all the galaxies, to the stars, to the sun, to the moon, to the air, to the plant life, to the marine life, to water, to this all space all around us, to the mountains and the creation of gods, to all the natural things around us, which are there for our life. Because life is possible because of all these planetary positions. So even if the distance between, like even by 1 inch, if the distance between Jupiter and the sun shakes, life on the earth would not have been possible. It is that accurate, meticulous, and that profound. And so today's day is this is going to change your astrology forever. Like whatever we call it, all the astrological things we have, 9 planets and sun and the moon and galaxies and all of that, because today's day is saying thank you to all of them by simple act of just saying thank you to the air that you're breathing. Because the air that you're breathing basically is not just one of the elements, it is a prana, it is our life. हमारी जिंदगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हवा है और हम सांस ले पा रहे हैं. अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर लाइफ हमारे भी प्लैनेट पे पॉसिबल नहीं हो पाती. सो बाकी के प्लैनेट्स हैं, लोगों ने एलियंस देखे हैं, उनका मतलब बहुत अलग तरीके से उनका मतलब रहन सहन होता है और दे आर वेरी वेरी मैकेनिकल, लाइक बिल्कुल उनका वो सिलेंडर्स लगे होते हैं, वो जिस तरह से रहते हैं. किसी भी प्लैनेट पे अभी तक जितना भी डिस्कवरीज और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऑक्सीजन किसी भी प्लैनेट पे नहीं है. और अर्थ पे भी एक सर्टेन हाइट तक ही है, उसके ऊपर देयर इज नो एयर. सो बहुत ही मैग्नानिमिटी चाहिए होती है, बड़े दिल के साथ इन सब चीजों को थैंक यू बोलना. बिकॉज हमारी आम जिंदगी में हम लोग इतने ट्रैप्ड एंड कंज्यूम्ड रहते हैं अपनी डेली प्रॉब्लम्स की वजह से, तो और कभी हमने अपने बियॉन्ड या फिर अपने जो लोग होते हैं उनके बियॉन्ड हमने सोचा ही नहीं है.
मतलब इतनी दूर तक सोचा ही नहीं है कि वाओ यू नो द स्टार्स आर देयर एंड प्लैनेट्स किस तरह से प्लेस्ड है, यू नो उनके डिस्टेंसेस कितने परफेक्ट हैं। मतलब हवा है और हवा भी एक ही लेवल तक है जहां तक आप रह सकते हो। मतलब वो ऐसा है बिल्कुल कि ह्यूमन बीइंग्स को किसी ने गिफ्ट दे दिया है कि ये तुम्हारी जिंदगी के लिए है और इसको इसी लेवल तक रह सकते हैं। बिकॉज जब हम फ्लाई करते हैं, फ्लाइट में होते हैं, तो कैप्टन वहां का टेम्परेचर अनाउंस करते हैं। तो फ्लाइट नॉर्मली 34,000 से 36,000 फीट ऊपर मतलब फ्लाई करता है प्लेन। और वहां कैप्टन अनाउंस करते हैं द आउटसाइड टेम्परेचर इज -35 डिग्री सेल्सियस, यू नो। सो ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल है, लिवेबल नहीं होता है, मतलब -34 में एक ह्यूमन बीइंग का, बिकॉज जिस तरह से हमारी बॉडी बनी हुई है हमको बहुत वार्मथ की जरूरत होती है। जहाँ पे नॉर्थ पोल पे है भी इस तरह का टेम्परेचर, जहाँ एस्किमोज रहते हैं तो वो इग्लू में रहते हैं क्योंकि उनके रहन सहन अब अलग हो जाता है ना। मतलब जिस तरह के वो सील सील जो होता है एनिमल, उसके स्किन के कपड़े उनको पहनने पड़ते हैं, और जिस तरह से वो हेविली कवर्ड रहते हैं। जो लोग भी ठंडी जगहों पे रहते हैं जैसे नदर्न पार्ट ऑफ कनाडा और नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, इन सारे कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनका बहुत अलग तरीके से उनको अपने आप को वार्म रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी सांसें बहुत आराम से ले रहे हैं। अबंडेंस में एयर है। और क्या ये एयर हो सकती थी अगर प्लानिटरी पोजिशन, अगर सन थोड़ा नजदीक होता? नहीं पॉसिबल होता, हम लोग जल के मर जाते एकदम से, यू नो। तो सन ने भी इतना इतना कंपैशन है सारे प्लैनेट्स में कि अपने आप को उन्होंने इसी तरीके से प्लेस किया हुआ है कि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी लाइफ हमारी नहीं है, हम जिस प्रोपोर्शन में ले रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में हमको देना भी चाहिए। सो इट इज टेक दिस एज अ गिफ्ट, यू नो, इट इज अ गिफ्ट। इट इज नॉट दैट हमको बहुत हक है अपनी जिंदगी को इल ट्रीट मिसट्रीट करने का और वो सब। So not at all. I mean, the universe has the best to offer to us. You know, हम लोग देख रहे, मतलब there is a certain segment in which I'm constantly praying, you know, and I'm seeing that, and that's a very huge desire. Okay, and I'm seeing that वो it's channelizing now. मतलब जिस तरह से वो हिल रहा है उसके आसपास वो चीजें होने लग गई हैं। मतलब मुझे पता है कि वो एंड रिजल्ट आने वाला है और बहुत ज्यादा जल्दी। So I'm myself surprised that my God, मतलब this is what I keep telling my subconscious mind। और मैं बहुत मैकेनिकली बोलती थी बिकॉज मुझे too good to be true वो लगता था अपना डिजायर, मतलब बड़ा लगता था। कई बार होता है ना डिजायर बहुत बड़ा लगता है हमको कि ये कैसे होगा, मतलब वो उसको मैं होता हुआ देख रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं पूरे टाइम, यू नो, आई कीप दैट इन माई माइंड। जैसे रोंडा बर्न ने कल बोला था that I strongly urge that you should keep your desire list with you all the time, and you carry it and you open it, and whenever you get time, you know, just open it and see it and give massive thank you. So मतलब वो चीज करने से, दिमाग में रखने से, या रिपीटिशन से, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार कोई चीज बोलने से, बहुत बड़ा माउंटेन भी बहुत आराम से, मतलब वो हल्का होके शेक हो रहा है, यू नो। बहुत बड़ा माउंटेन, मेरे लिए वो बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है। तो वो इतनी आराम से हिलना शुरू हो गया है, और फिर और ज्यादा उससे फेथ स्ट्रेंथन हो जाता है इन कॉस्मिक पावर्स पे, यूनिवर्सल पावर्स पे। मतलब लाइफ ही इस वजह से है, और वो लाइफ हमारे लिए गिफ्ट है ना। तो ये बहुत मैग्नानिमिटी वाला आज का प्रोफाउंड चैप्टर है। इसीलिए इस चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है कि अगर आपने आज वाली प्रैक्टिस कर ली तो इसके बाद आप एक एल्केमिस्ट बन जाओगे, वो कीमियागार जो किसी पत्थर को भी सोने में बदल सकता है। मतलब एक इस तरह की पावर आ जाती है हमें, है ना। सो लेट्स रीड इट एंड ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत प्रोफाउंड है, तो हम बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे कि ऐसे फ्री में सांसें मिल रही हैं हमको, और लिए जा रहे हैं, है ना, पूरे टाइम। और यू नो इसकी वजह से जिंदगी है, इट इज प्राण, इट इज लाइफ, you know. So that for that life today we are saying thank you कि you know, thank you universe कि आपने हमको जिंदगी दी, हमको लाइफ दी, और हम इतनी फ्री में सांसें लिए जा रहे हैं। इतना अच्छा नेचर है अराउंड, मतलब 5 एलिमेंट्स तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो या इट्स लाइक दैट। और इसका वो इमेज देख लेते हैं एक बार। मैम कैन आई रीड? Of course you can, sure. So इसमें what we can see is only the space. See, we can see the grass, we can see the tree, we can see the air around it, we can see the space, and obviously tree जब तक हरा है तब तक उसमें पानी भी है, हवा में मॉइस्चर होना बहुत जरूरी होता है। अगर बहुत ड्राई एयर होती है
तो अगेन बॉडी में पूरा ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर इम्बैलेंस हो जाता है. सो देयर हैज टू बी अ परफेक्ट लेवल ऑफ मॉइस्चर आउटसाइड एंड इनसाइड, है ना. सो इस तरह से आप देखो दैट एवरीथिंग इज इन बैलेंस हियर, and that is the beauty, you know, and this is a gift from the universe to us. Yeah, please start reading. Day 23, the magical air that you breathe. Quote, it is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, bewildered, enchanted. Unquote. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that the things I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, quote, when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Unquote. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that a solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Yeah, 1 second, Deepa. So, in the first part of this chapter, it says that आप सुबह सुबह जाते हो और ताजी ताजी हवा आप you take inside and you feel very good about it. कभी भी low feel कर रहे हो and you go out into the fresh air. जैसे होता था ना, पहले भी बोलते थे कि थोड़ा अगर बीमार होता तो कहते इसका हवा पानी चेंज कर दो थोड़ा सा, उसी से फर्क पड़ जाता है. So that air has something magical about it. That's why we say that go out in the fresh air, go in the morning air, and go for a walk. So that's what it says, that you go out, but you come as a very different person because there's beautiful nature. It is a straightaway sign of abundance around us, abundance of trees, abundance of air, abundance of space all around us. And it is so beautiful, which is a total gift. सो ये रोंडा बर्न ने बताया है कि अगर मुझे कोई कुछ साल पहले अगर बोलता कि आप एयर जो ब्रीथ कर रहे हो उसके लिए बहुत थैंक यू फील करो, तो मुझे लगता था कि वो पर्सन क्रेजी है, लाइक व्हाई वुड आई. सो शी सेज मुझे कोई सेंस नहीं लगता था ये, व्हाई शुड वी बी ग्रेटफुल टू द एयर, वो तो है ही. बट जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड इनकलकेट हुआ लाइफ में, जैसे हमने भी तो ये चैप्टर पहले नहीं किया ना, हम इसको 23 नंबर पे कर रहे हैं. पहले शायद ये दिल से नहीं हो पाता बिकॉज ग्रैटिट्यूड हमारे सेल्स में परमिएट नहीं हुआ था तब तक.
तो जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड परमिएट हो गया हमारे लाइफ के अंदर, तो हमको अब पता लगता है कि वाओ, मतलब ये बिल्कुल, ये जो प्लैनेट, स्टार, सन, मून, ये सब नाइफ एज पे हैं, और इनका माइक्रो डिस्टेंस भी एक दूसरे से अगर आगे पीछे होता तो हम, मतलब इट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। मतलब ये इतना बड़ा अरेंजमेंट है यूनिवर्स का हमको लाइफ देने के लिए, ताकि प्लैनेट अर्थ पे लाइफ रहे, और ये बहुत बड़ी नियामत होती है। इसीलिए, क्योंकि हम लोग, इसमें ये लिखा हुआ है ना कि वो अपने रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, ऑल द स्मॉल स्टफ इन द लिटिल वर्ल्ड, डे टू डे लाइफ में, वो कहती थी कि मैं उनमें परेशान रहती थी, उलझी रहती थी। बट जब मैंने एक बिगर पिक्चर देखा, तब मुझे पता लगा कि वाह, मतलब ये तो बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। जिस तरह से इट इज लाइक वंडर ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज व्हाट शी सेज, दैट इट इज अ ब्यूटीफुल वंडर ऑफ द यूनिवर्स। और जैसे न्यूटन ने बोला है कि जब सोलर सिस्टम को देखते हैं, अर्थ बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है। न्यूटन फिजिसिस्ट थे, तो इन्होंने पूरा डिस्टेंस सारे प्लैनेट, सन, मून के बीच में बहुत अच्छे से मेजर किया था। तो वो बता रहे थे कि वो अर्थ बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से, ताकि एग्जैक्ट, मतलब जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट है वही आए, और ये कोई चांस की बात नहीं है कि ऐसा हुआ है। तो फिर रोंडा बे ने कहा, जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने देखा कि हाँ, मतलब देयर इज अ ह्यूज बिगर पिक्चर जिसके बारे में हम सब सोचते भी नहीं है। और इट इज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट दैट एक एटमॉस्फेयर है हमारे अराउंड, और हमको पता ही एटमॉस्फेयर कुछ कुछ डिस्टेंस तक ही होता है। लाइक अगर लेह लद्दाख या और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं, माउंटेन के ऊपर, तो वहां पे हमको एयर प्रेशर और ऑक्सीजन दोनों ही कम हो जाता है ना। फ्लाइट में भी बोलते हैं ना, जबकि हम तो फ्लाइट के अंदर इनक्लोज रहते हैं, तब भी बोलते हैं कि हवा का दबाव कम होने पे ऊपर से मास्क गिरेगा, और उसको दूसरों को मदद करने के पहले अपने मुंह पे लगाएं। सो दैट इज लाइक अ स्टैट्यूटरी सेंटेंस जो बैठते ही हमको आता है ना। तो मतलब सोचो कि आप उसमें क्यूबिकल कैबिन में होते हो, मतलब इनसाइड द फ्लाइट, और उसमें भी एयर प्रेशर इतना कम हो जाता है क्योंकि उतने ज्यादा ऊपर के डिस्टेंस पे नहीं है। तो ये जहां तक ह्यूमन लाइफ लिवेबल है, ये वहीं तक ऑक्सीजन और एयर प्रेशर होता है, धीरे धीरे खत्म होता जाता है और आप वैक्यूम में चले जाते हो आफ्टर सम टाइम। तो इतना ब्यूटिफुली इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ है हम सब, हमारे लिए, that we have this air and oxygen, and it says it's not an accident that trees are giving oxygen. So what happens is that we are constantly giving out carbon dioxide. हम अपने सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो सारे ट्री लाइफ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो ऑक्सीजन देते हैं जो हम वापस अंदर लेते हैं। तो देखो, ये ऑर्केस्ट्रेशन तो है ना, कि मतलब देयर इज सम, ऐसे तो नहीं तो हम छोड़ते रहते, इतने सारे पॉपुलेशन राउंड द वर्ल्ड बढ़ती जा रही है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में भर जाता, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स लिवेबल ही नहीं रहता प्लैनेट अर्थ, है ना, क्योंकि लगातार सब लोग, इतने सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं। बट द ब्यूटी इज दैट वो इमिडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, वो प्लांट्स एंड ट्रीज वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली रहता है और रहता ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अब ऑक्सीजन या अपनी सांसों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, हमको बाय डिफॉल्ट ट्रीज के लिए बोलना पड़ेगा, या प्लांट लाइफ जो है, पूरी वेजिटेशन ऑन द प्लैनेट अर्थ, सो प्लैनेट अर्थ को थैंक यू बोलना, है ना। बिकॉज ऑफ प्लैनेट अर्थ हम जिंदा हैं, बिकॉज वो जो ऑक्सीजन स्पेस में है तो हम सांस ले रहे हैं, है ना। और वो वाटर भी निकलता है, हमारी सांसों से भी पानी निकलता है, और जब ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं तो उनसे भी H2O निकलता है। ठीक है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें भी बहुत भाप होती है, उसमें भी H2O होता है। सो वाटर एलिमेंट को थैंक यू बोलना है, जिस तरह से ये चल रहा है ना। और स्पेस एलिमेंट को तो हमने बोला ही है। तो हमारे ऑल 5 एलिमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स हीट वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती प्लांट से। फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में होती है, इसीलिए ग्रीन आपको प्लांट्स तभी नजर आएंगे जब सनलाइट पड़ती है। जहां पे सनलाइट की कमी होती है, जिन जिन कंट्रीज में धूप नहीं आती है, वहां पे प्लांट्स का कलर ब्राउन या ब्लैक होता है, क्योंकि वो ग्रीन नहीं हो पाता। ग्रीन कलर के लिए देयर हैज टू बी सनलाइट, है ना। सो दिस वे वी सी दैट everything is in perfect order all around us.
So that's what it says, that it's not an accident. कोई by chance नहीं है कि solar system जो है पूरे 9 planets sun के इर्द गिर्द, you know, Mercury, Venus, Earth, Mars बहुत मतलब by chance वैसे ही placed हैं. No, I mean there is a force that has done that only to make the human life possible. नहीं तो अगर उसमें लिखा हुआ है थोड़े वो आगे पीछे होते तो हम लोग cosmic radiation से मर जाते. You know, life would not have been possible अगर ऐसा होता तो इस तरह से हमको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होने की जरूरत है हमारे नेचर वाली चीजों को, प्लैनेट्स को. और फिर जब हम ये वाली प्रैक्टिस करते हैं कि जब मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि इसके लिए ना हमेशा टाइम निकालो, सुबह सुबह जब उठते हो बाहर ताजी हवा में जाके, यू नो, बिफोर एनीबडी वेक्स अप, पूरे जो ये सेलेशियल बॉडीज हैं, यू नो, मून है, सन है, सारे 9 प्लैनेट्स हैं, इनको थैंक यू बोलना. बिकॉज जिंदगी है, ये है तो जिंदगी है. अगर ये इस तरह नहीं होते तो लाइफ भी नहीं होती है. सो इतना ज्यादा वी रियली नीड टू बी ग्रेटफुल. एंड दैट इज व्हाट इज गॉड एक्चुअली. What is God is the cosmic force. You know, we might call God as different names, but it is that force above us which is making life happen. That is the real God, the real God. That is. Okay, it is not like a human being or something, you know, that was there. I mean, like whatever we might say, but the real force is this only, the cosmic force that we have, you know, the universe. That's why when we write hum aise bolte hain na, I am so happy and grateful to the universe, thank you universe. So universe is this, you know, this is what to make life possible for us. And all of them, it says that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. हाँ जी, दीपा. मैम आई आई म्यूटेड हर, उसका ना वो आ रहा था बहुत हाँ डिस्टर्ब. हाँ, कोई बात नहीं. Okay. When the realization hits you that all of these things might not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body. It feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I've ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude.
And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, "Thank you," as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Magic practice number 23, the magical air that you breathe. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Third, after you have taken the 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." Be as grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Thank you, Deepa, for reading Thank you. so nicely. Thank you. So here the second part of the chapter जो था उसमें रोंडा बर्न ने एक कैच भी दिया. उन्होंने कहा है कि पहले तो मैं अपनी जो मुझे डिजायर था वो मैं मांगती थी और मुझे वो सब ग्रैटिट्यूड से मिलने लग गया. And but uske baad when I started paying gratitude to the real gifts of life, the real gifts of life, like the natural things like sunrise, sunset, the trees, the plants, the dew on the grass,
जब ये शुरू किया उसके बाद जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी लग्जरीज उनकी जिंदगी में आने लग गई, क्योंकि सब बना तो इन्हीं से है ना। मतलब अगर घर भी बनाए तो वो अर्थ एलिमेंट से ही बना हुआ है, वाटर से उसकी तराई होती है, ठीक है। फर्नीचर जो घर में वुड है वो नेचर से है। सो एवरीथिंग वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम द नेचर, जो स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग, द बिगेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो सब वहीं से है। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है दैट लाइक जब उन्होंने छोटी छोटी चीजें छोड़ के जब बहुत बड़ी मैग्नानिमस पिक्चर के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया, which are the real gifts of life and the enormousness of what had to take place in the universe for us to live. हमें जिंदगी देने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें यूनिवर्स ने क्रिएट करी हैं, मतलब सारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, उनका डिस्टेंस, इतने पेड़ पौधे, द ग्रीनरी, द सन कमिंग एट द राइट टाइम, द मून, द स्टार्स, द एयर प्रेशर, all these things they have happened so that हमको जिंदगी मिले। सिर्फ ये पर्पस था, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उस लेवल पे, उस सतह पे जाके मतलब डेप्थ के साथ सोचना कि वाओ, लाइक दिस इज अमेजिंग, ओके। एंड स्टिल वी लुक डाउन ऑन आवर लाइव्स एंड वी ट्रबल आवरसेल्व्स, हम अपने पता नहीं बहुत अगर सेवर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपनी जिंदगी का। सो दैट इज हाउ इट इज लाइक। So it says the most precious gift of a life is air, the most precious. You might have the Kohinoor diamond in your whatever, but this is the real. When we don't have air, तो हमने देखा है लोगों का क्या हाल होता है बिना एयर का। So अगर हमने इसका करने लग गया, of course इस वाली प्रैक्टिस की वजह से I have personally experienced a lot of difference in the health, आपके एनर्जी लेवल, आपका एंटी एजिंग शुरू हो जाता है ये करने से। मतलब यू स्टार्ट ग्रोइंग यंगर एंड यंगर, इट इज सो ब्यूटिफुल, योर स्किन स्टार्ट्स रेडिएटिंग, योर हेयर लुक्स ब्यूटिफुल, एनर्जी लेवल बॉडी का अच्छा होने लग जाता है ना। बिकॉज ये तो है ही मेजरली हेल्थ एंड लाइफ प्रैक्टिस। हेल्थ है तो लाइफ है, और बाकी की जो चीजें हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, आप उसमें भी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखोगे। And that's what Rhonda Be says here, that it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. मतलब इनमें एक पावर आ गई थी, वो कुछ सोचती और वो हो जाता, उनको सारी मटेरियल चीजें मिलने लग गई, उनको सब कुछ मिलने लग गया। ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद जब उन्होंने सनसेट के लिए थैंक यू बोला, ट्रीज को देख के उनको थैंक यू बोला, ओशन सी के लिए थैंक यू बोला, द ड्यू ऑन द ग्रास, अपनी लाइफ के लिए थैंक यू बोला, एंड द पीपल इन इट, एवरी मटीरियल थिंग आई हैव ड्रीम्ड ऑफ हैविंग पोर्ड डाउन अपॉन मी, तो ये वाली प्रैक्टिस करके उनको जिंदगी की सारी मटीरियल चीजें मिलने लगी और उनकी खुशियां बढ़ने लग गई। सो अब वो कह रही हैं कि अब मुझे पता लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने समझाया है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, when we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude. मतलब इसके ऊपर gratitude हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। and whoever has this gratitude, this depth of gratitude, उनको अपनी जिंदगी में absolute abundance मिलेगी। तो अगर हमको तो चाहिए ना absolute abundance, तो हम रोज ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। करना ही क्या है, दिन में 5 दफा ऐसे बोलना है बस, मतलब फील करना है, फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड एंड द जॉय ऑफ ब्रीदिंग आउट, ठीक है। और बहुत सारा थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि इस तरह से इतनी अच्छी सुंदर सी एयर और इतना ब्यूटीफुल नेचर बनाया, इतने सारे ट्रीज बनाए, सी बनाया। फिर आप देखना वर्ल्ड के सबसे अच्छे सी, ओशंस, बीचेस पे आपको जाने का मौका मिलेगा। आई मीन इट विल जस्ट हैपन because universe takes you there. Everything is controlled by someone out there, right? So that's what it is, today's practice. Today's practice is not कि बस 5 अंदर सांस ले लो और 5 छोड़ दो और उसके बाद बोलो थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, वो तो करना ही है हमको। लेकिन उसके पहले दिल में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भरना यूनिवर्स के लिए, ठीक है। स्टॉप एंड थिंक अबाउट द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग, स्टॉप एंड थिंक अबाउट व्हाट हैड टू टेक प्लेस फॉर अस टू ब्रीथ, स्टॉप एंड थिंक अबाउट द ब्यूटिफुल ट्रीज एंड abundance of trees which are there,
Stop and think about how everything, all the planets are positioned at a specific place, time, whatever, at a distance for to make it possible for us to breathe that air. उन सबको पहले थैंक यू बोलो. तो मैंने अपना पहला वाला दिन में 5 दफा करना है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इसलिए दिन में 5 डिफरेंट टाइम करना है. So normally also when I go in my balcony the first thing in the morning, so I anyhow say thank you to all the 9 planets, unka naam se, and I do that out loud every day. That's by default every day, So आज जब मैं कर रही थी तो मैंने ये पहली प्रैक्टिस तभी कर ली है, बिकॉज पता था मुझे कि आज डे 23 है ना. सो फर्स्ट प्रैक्टिस तभी कर ली, और तो तब ऐसे ही करी है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वो बहुत अच्छे से पूरे 9 प्लैनेट्स को, सन एंड मून को, गैलेक्सीज को, स्पेस अबव को थैंक यू बोल के, फिर सारे 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोला, टू मेक लाइफ पॉसिबल एंड टू गिव अ ब्यूटिफुल लाइफ, and to give a beautiful life of creation. So when I write in my first, this thing is always that I'm so happy and grateful. I'm truly grateful that I have life and I've come to know that the life is for creation. ये बहुत लोगों को तो नहीं पता होता ना. कितने लोग हैं जिनको पता होता है कि आपका क्रिएटिव मोड होता है ब्रेन में, और आप अपनी जिंदगी क्रिएट कर सकते हो जैसे आप चाहते हो. हम सब सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं ना मोस्टली, मतलब उसी में हमको और अच्छा चाहिए होता है, बट हम क्रिएशन मोड में तो रहते नहीं है. हम परेशान होते रहते हैं. परेशान होने की में जरूरत ही नहीं होती. हमको पता है 40% ऑफ द ब्रेन आपका क्रिएशन के लिए बना हुआ है. अब क्रिएट करो. आपको प्यार चाहिए, आप क्रिएट कर लो. ठीक है, पैसा चाहिए, क्रिएट करो. और क्रिएट कैसे करते हैं? थैंक यू बोल के. इतनी सारी प्रैक्टिसेस सीख ली हैं और हर महीने करते ही रहते हैं. कभी एंड ही नहीं आ रहा है इस बुक का, तो एंड आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी भी हम समझे कहाँ है बुक को. मेरे ख्याल से अभी हम 10-20% भी नहीं समझ पाए प्रोफंडिटी ऑफ द बुक को, है ना. तो इसलिए हर महीने करते हैं, क्योंकि जिंदगी तो इसी से चेंज हो रही है. और साइंस कैसे काम करती है ये हमको दूसरी किताब सिखाती है, इसीलिए हम 2 बुक्स पढ़ते हैं साथ में, है ना. सो ये वाला जो चैप्टर है, अगर ये हमने कर लिया, उसके बाद अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा. एंड दैट इज द एसेंस ऑफ द होल थिंग. और ये करने के लिए हमको वो 22 चैप्टर्स करने जरूरी थे, तभी हमको ये डेप्थ से समझ आता. सो दैट इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. तो इसमें एक और चीज लिखी हुई है, दैट एंशिएंट टीचिंग्स में ये लिखा हुआ है, जो पुराने टीचिंग्स हैं, दैट जब इंसान का ये लेवल हो जाता है कि वो डीपली ग्रेटफुल अपनी एयर के लिए, अपने प्राण के लिए, अपने सांसों के लिए जब वो हो जाता है, तो उसका ग्रैटिट्यूड एक नए लेवल पे, एक नई पावर उसमें आ जाती है. और फिर उसके बाद वो कीमेगार या एल्केमिस्ट बन जाता है, जो एक पत्थर को भी सोने में बदल पाता है. तो अब ये पावर हम में तभी आएगी अगर हम ये रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये पावर बरकरार रहेगी और स्ट्रेंथन होती जाएगी. तो हम इसको करते, मतलब ये लिखा हुआ है, इतने लोगों ने किया है, एंशिएंट टीचिंग्स ने बोला है, तो हमारा बस ये काम है, चुपचाप हम अपने दिमाग को बिना लगाए हम इस तरह से इसको प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि हम रोज इसको कर सकते हैं, है ना. We'll try and do it every day. Why not? I mean, it is so beautiful that we have to thank the universe for this, and then we'll see कि हमको जो cold and cough और ये सारी चीजें होती थी, health breakdowns on and off होते रहेंगे, ये सब नहीं होगा. हमारा हार्ट, हमारा ब्लड, हमारे लंग्स, हमारे सेल्स जो ऑक्सीजन से ही चल रहे हैं. एनर्जी हमको कैसे मिल रही है? एयर से ही तो मिल रही है ना. ये ऑक्सीजन आता है हमारे अंदर, लंग्स में जाता है, लंग्स से ये ब्लड के थ्रू हार्ट में जाता है, हार्ट से ये हार्ट के नीचे वाले अपने बॉडी के हिस्से में जाता है, हार्ट ऊपर वाले बॉडी हिस्से में भी फेंकता है, जो हार्ट के ऊपर वाले एरियाज हैं, है ना, दैट इज द नेक एंड द फेस एंड द ब्रेन स्पेशली. तो वहां पे ये ऑक्सीजन जाती है, और इस ऑक्सीजन से ही एटीपीज प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी बॉडी के अंदर होती है. अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस हो पाती है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग. सो व्हाई नॉट say thank you to it? It's a very powerful practice. Let's do this every day. I mean, like thanking that force of the universe and taking that moment and that time from our busy schedules to just say thank you 5 times in a day, because there are 5 elements. Our body is also made up with 5 elements, right? So we can do this practice and have this kind of a power that should be there in our life. मतलब जो हम alchemist बनेंगे, क्योंकि ये power हमको वापस देनी है. ये गिफ्ट जो हमें मिल रही है ना, ये निकलना भी होता है, सर्कुलेशन में रहना होता है. तो ये पावर अब हमको देनी भी है लोगों को, अपने अलग अलग जगह पे. हम सबके अलग अलग तरह के काम है, वहां पे इन अ डिफरेंट वे वी विल गिव आउट. बहुत पैसा आ रहा है तो क्या वो होल्ड थोड़ी करोगे? यू हैव टू चैनलाइज इट, नो.
यू हैव टू गिव। आप ऑब्वियसली उससे और प्रॉपर्टीज खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके घर चलेंगे, इजंट इट? हमारे ही पैसे से सब हो रहा है ना, हम इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे ना। सो प्रॉपर्टी डीलर है, उनका परिवार है, उनको पैसे मिलेंगे, फिर उनसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, उनको मिलेंगे, फिर आप एक नया घर लोगे, फिर उसका रेनोवेशन कराओगे तो बहुत सारे लेबर्स हैं जो उसमें काम करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे। तो ये पैसे का सर्कुलेशन चलता रहता है, रुकता थोड़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल स्पेंड मोर एंड देन अब उनका चलेगा, उनका सस्टेन होगा, उनसे उनके आगे का होगा। सो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। इस तरह से हर चीज को हम जिस प्रोपोर्शन में लेते हैं हमको आगे भी चैनलाइज करना पड़ता है, देना भी होता है ना। एंड बहुत खुश होके जिंदगी जियो। सो खूब अपना लाइक दैट्स व्हाट ओप्रा विनफ्री सेज, नो, फिल अप योर पॉट सो दैट यू कैन स्टार्ट गिविंग टू द वर्ल्ड, right? Because we have service, you have to be of service wherever you are, in whichever way. Okay, you have to be of service. So that's what it is. So अब alchemists बनेंगे, आज बन जाएंगे ये प्रैक्टिस करने के बाद, और उसके बाद कल से हम देना शुरू करेंगे। तो कल से अब हमारे पास ये पावर आज ही आ जाएगी, जिसको कल वाले चैप्टर में हम मैजिक वॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि जादू की छड़ी, who can turn others problems into, like resolve the others issues also, like कोई बीमार है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की हेल्थ में बहुत मेजर ब्रेकडाउन चल रहा है, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी को रातों को नींद नहीं आती है, तो उन सब लोगों के लिए अब आप काम में आओगे, क्योंकि आज ये पावर अपने अंदर भर लेंगे। तो कल का चैप्टर का नाम है द मैजिक वॉन्ड, है ना, यानी कि जादू की छड़ी। Who's that जादू की छड़ी? We have become that जादू की छड़ी today. Okay, so and then we will start channelizing to the others. That's the beauty of it. अपनी जिंदगी तो भरी जाएगी, इसमें तो गारंटीड लिखा हुआ है ना कि जितनी लग्जरीज एंड अबंडेंस आपको ये वाला चैप्टर करने पे मिलती है। रोंडा बर्न ने कहा है कि वैसे कुछ भी, मतलब ये सबसे पावरफुल चैप्टर होता है, छोटा सा है बट पावरफुल चैप्टर है। So now we can effortlessly turn every part of everybody's life into gold, ये वाला प्रैक्टिस करके, ठीक है। सो आज की प्रैक्टिस यही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो सुबह हमें करनी होती है। रोज 10 ब्लेसिंग हम लिखते हैं, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट दिस बिकॉज दिस, और 10 लिख के हमको उनको रीड करना है, और उसके बाद आउट लाउड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है ना। और आज की प्रैक्टिस ऐसे एकदम से नहीं, पहले स्टॉप एंड थिंक, पहले बहुत अप्रिशिएटिव मोड में अपने आप को लेके आओ, लाइक विद अ लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट towards the forces of nature, towards plants, galaxies, planets. So इसलिए आप देखोगे आपका हॉरोस्कोप जो क्या है, रोज थैंक यू बोलो, हॉरोस्कोप आपके अगेंस्ट काम ही नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी ने बोला है राहु केतु, which is I think the last 2 planets, Neptune and Pluto, that's what Rahu Ketu is. It could be Shani, it could be whatever, it could be Guru, ऐसे बोलते हैं इसकी महादशा उसकी महादशा, कुछ नहीं यार, रोज थैंक यू बोलो, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी प्लैनेट्स कोई हमारे बुरे के लिए थोड़ी है, लाइफ, ह्यूमन लाइफ मिली है, यही सबसे बड़ी नियामत है। Why will planets oppose us? वो सब कार्मिक होता है, अपने कर्मास तो आप एक सेकंड में इरेज कर सकते हो ना, जैसे आप दिल में थैंक यू भर लेते हो तो वो वैसे ही हो जाएगा। 9 प्लैनेट्स को आपने थैंक यू बोल दिया, बाय विल राहु केतु एंड शनि ओपोज यू, और गुरु की महादशा, एंड नथिंग विल ओपोज अस नाउ। ओके, इट इज ऑल अबाउट दिल में प्यार भरो इनके लिए, आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, वो अपोज थोड़ी करेंगे हमको। कहते हैं ना, बुद्धिज्म में ही लिखा हुआ है, व्हेन यू बाउ डाउन टू ऑल द 9 प्लैनेटरी पोजीशंस, व्हेन यू बाउ डाउन दे विल आल्सो, दे विल स्टार्ट सर्विंग यू, so it is how it is, like it is, they are not there to oppose us. So don't think ever that my horoscope is bad, ऐसे बोल बोल के और कर्मा खराब करते हैं हम लोग, है ना। सो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, कर्मा किए होंगे पिछले जन्म में, हमें कौन सा याद है, हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास टूल है कि जन्मों जन्मों का कर्मा आप एकदम से चेंज कर सकते हो, है ना। जो दूसरी बुक पढ़ रहे हो उसमें सबकॉन्शियस माइंड में ये समझाया हुआ था अर्लियर चैप्टर्स में कि your kismat right now is nothing but some karmas you may have done, which is carried through your soul, that is through your subconscious mind from one janam to the other, है ना। सो वो एक सेकेंड में आप पुरानी जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड प्लान करते हो, आपके अपने आप नेगेटिव कर्मा इरेज हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, जस्ट गो से थैंक यू टू प्लैनेट्स एवरी डे ऑफ योर लाइफ। दिन में 10 बार आपको बोलना है, 10 बार बोलो, ठीक है। आप देखो कैसे किस्मत बदलती है,
एकदम से पता भी नहीं लगेगा कि ये कैसे हो रहा है. दैट्स ऑल अबाउट इट. सो डोंट से दैट मेरा ये है, मेरा वो है, और पंडितों के पास चक्कर लगा रहे हैं ये करने के लिए. दैट ह्यूमन हिमसेल्फ इज लाइक लाइक उनका भी अपना सेट ऑफ कर्मा है. सो ऐसा कुछ नहीं होता. नो ह्यूमन डज नॉट हैव दैट पावर. दैट पावर कम्स बाय ऑल दीज प्रैक्टिसेस. व्हेन यू डन दीज प्रैक्टिसेस देन यू कैन. मतलब आप लोगों की किस्मत बदल रहे हो. बताओ, अब उनका राहु केतु खराब है, सपोज आपके एनवायरमेंट में किसी का, और उनको बहुत ज्यादा बिजनेस प्रॉब्लम चल रही है, आप में ऐसी पावर आ रही है कि आप उसका मतलब डूबता हुए बिजनेस को आप उठा के उसको चरम सीमा पे पहुंचा सकते हो. ये पावर आ रही है. कहाँ से आ रही है? ये प्लैनेट से तो दे रहे हैं हमको. और ये कैसे दे रहे हैं? पंडितों के चक्कर लगा के तो नहीं दे रहे ना. सो इसलिए कोई जरूरत नहीं है वो सब करने की. आप मतलब इट जस्ट डजंट वर्क. आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. यस, आपको जाके जल चढ़ाना है पेड़ को, तो उस प्यार से चढ़ाओ, बिकॉज वो दो एलिमेंट्स का फ्यूजन है, और वो ग्रेटिट्यूड के साथ आप चढ़ा रहे हो. बट ऐसे भिखारियों की तरह थोड़ी जा जाके मांगे भगवान ये दे दो वो दे दो. यू क्रिएटेड, यू हैव ऑल द पावर टू क्रिएट इट. I mean, the universal and all planets and sun, moon, they're all there to support. The moment you have said thank you, because that is the frequency of the universe. Universe की भाषा वो होती है. यूनिवर्स की भाषा हिंदी इंग्लिश नहीं होती है. यूनिवर्स की भाषा होती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी एलिवेटेड रखो अपनी. ठीक है, जैसे मतलब ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहो. थैंक यू सो मच. अच्छा हो थैंक यू, बुरा हो थैंक यू. ठीक है, और आप देखो कैसे आपकी किस्मत बदलती है. And this practice is very, very powerful. So today when you do this practice, 5 बार तो करना ही है ना हमको. तो अगर आप भूल जाते हो तो अलार्म लगा लेना. ठीक है, जैसे कल भी मैंने मतलब फुल मून मेडिटेशन मुझे करना था. मतलब मुझे स्क्रिप्टिंग करनी थी, मेडिटेशन तो नहीं किया मैंने, मुझे स्क्रिप्टिंग करनी थी. मुझे अलग अलग एरियाज में मैंने सोचा हुआ था फुल मून के दिन आई राइट. तो वो करने के लिए मैंने अलार्म लगाया हुआ था. बिकॉज एकदम से लाइक कभी ऐसे घर में होते हैं, दिमाग में नहीं रहता. मैंने अलार्म लगा के फिर ऐसे किया था. तो आज का भी ये 5 बार करना है ना. आप 5 बार का अलार्म लगा लो. तो सुबह तो आप अभी कर लेना. कुछ नहीं, खुली जगह पे जाना है हमको, और 5 बार मतलब पहले खूब एडमिरेशन अप्रिशिएटिव मोड में ऑफ ग्रेटिट्यूड में रह के दैट थैंक यू यूनिवर्स इन दिस. उसके बाद 5 ब्रेथ्स हमको लेनी है. 1 इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये फर्स्ट राउंड हुआ. फिर सेकेंड इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सेकेंड राउंड हुआ. ऐसे 5 बार करना है. एंड फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड एंड फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट. मतलब देने में हमेशा जॉय होना चाहिए. दैट्स व्हाट इट मीन्स. ये रिफॉर्मेटिंग हो रही है हमारे ब्रेन की, कि जो ले रहे हो उसमें फील करो वाओ, और जो दे रहे हो तो खूब खुशी फील करो, कि देने में जो खुशी है ना वो वाला. तो इस तरह से ये 5 बार हमने ब्रेथ्स कर ली. उसके बाद हमको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, दिल में प्यार भर के. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस 1 हो गई. फिर इसको 3-4 घंटे के बाद करना है. तो 5 पहर होते हैं दिन के, 5 पहर में ये करना है. और कोई बात नहीं अगर 6-7 घंटे लगातार नहीं कर पाए, बट 5 बार करना है हमको इसको. सो बस ये याद रखना है हमको. सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस फॉर टुडे. और उसके बाद रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस. जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, एक छोटा सा जो रैंडम पत्थर है, लेकिन वो भी उसमें वो पावर आ जाएगी जैसे भगवान की मूर्ति में पावर आ जाती है ना. तो दैट उस पत्थर को हाथ में लेके आपको पूरे दिन भर का सोचना है सुबह क्या हुआ, इतना अच्छा मौसम था, थैंक यू, वाओ बारिश हुई. जैसे अभी थंडरिंग और डाउनपोर की आवाज आ रही है मुझे, तो इतना अच्छा लग रहा है. लाइक उसी से यू कैन कॉनोटेट द वेदर सो ब्यूटीफुल आउटसाइड. ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू. इतनी अच्छी आज बारिश हुई, इतना साफ साफ लग रहा था, मजा आ गया, थैंक यू सो मच. उसके बाद हमने इतना अच्छा स्टडी किया मैजिकल एयर, इतने प्रोफाउंड चैप्टर था ये, मतलब तो उसके लिए थैंक यू. फिर उसके बाद जो भी हमने किया आज, वर्कआउट बेसमेंट पार्किंग में करना पड़ेगा, उसके लिए दैट मेरे पास बेसमेंट पार्किंग है जो इतना बड़ा और इतना खुला खुला है. तो आज क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो उस बेसमेंट में जाके आज मैंने रनिंग और एक्सरसाइज की, खूब एलिवेटेड वॉकिंग करी. हिल वॉकिंग हो जाती है बेसमेंट में, क्योंकि जब गाड़ी ऊपर तक आती है ना, देन आई रन देयर. So that's very good for the tummy, like to put the tummy back in. एक्सरसाइज होती है. थैंक यू उसके लिए. फिर उसके बाद जो भी आपका था दैट बहुत रिलैक्स संडे था, उसके लिए थैंक यू. आज मैंने 100 ब्लेसिंग्स लिख पाई मैं, उसके लिए थैंक यू.
आज इतना रिलैक्स टाइम था, मैंने इतनी अच्छी मूवी नेटफ्लिक्स पे देखी, उसके लिए थैंक यू। इस तरह से पूरे दिन आप सोचो आपने क्या क्या किया है, खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना लग रहा था, थैंक यू। सो वो उसमें से बेस्ट चीज निकालो क्या हुआ और उसको थैंक यू बोल के सो जाओ। सो वी आर वेकिंग अप विद ग्रेटिट्यूड, स्लीपिंग विद ग्रेटिट्यूड, और दिन में 5 बार आज थैंक यू बोलना है वैसे भी, क्योंकि ये पावर आज हार्नेस करनी पड़ेगी, सारे यूनिवर्स से कैप्चर कर लो, क्योंकि कल से पावर यूज होगी लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सो नाउ वी गो टू द अदर बुक। आज बहुत ही बढ़िया हमारी मनी वाला चैप्टर चल रहा है ना, उसमें आज हमारी उसमें रीफॉर्मेटिंग हो रही है सबकॉन्शियस माइंड की। सो दिस इज chapter number 9 of the book, The Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. So much gratitude to him to actually teach us the science behind how it all works, है ना। तो कल हमने ये शुरू किया है मनी वाला, अब हम सैग्रीगेटेड कर रहे हैं। ऑफकोर्स हमने हेल्थ का कर लिया, अब हम मनी का कर रहे हैं कि कैसे पैसे यू बिकम अ मैग्नेट टू द मनी, और पैसों की बारिश आपके ऊपर कैसे हो सकती है। So wealth is connected to success. Okay, so success in life, success has a different connotation for all of us. Okay, some people will say that I'm very successful then when they have बहुत चैन से आराम से रिलैक्स वे में वो जिंदगी जीते हैं। कुछ लोगों के लिए सक्सेस होती है लग्जरीज एंजॉय करना, कुछ लोगों के लिए सक्सेस होती है घर में 5 गाड़ियां लेना, सारी हाई एंड कार्स, जो एक जैगुआर है, एक टेस्ला है। कई लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज बनाना, कई लोगों के लिए सक्सेस होता है लग्जूरियस वर्ल्ड ट्रैवल करना, है ना। कई लोगों के लिए सक्सेस होता है कंपनी का सीईओ बनना। सो इस तरह सक्सेस के सबके अलग अलग मायने होते हैं और सारे ही बहुत बढ़िया है, क्यों ना हो। ठीक है, तो वो सब तो एंजॉय करो, बट उसको कैसे करना है, वेल्थ एंड सक्सेस अपनी जिंदगी में कैसे लेके आनी है। वेल्थ मतलब बहुत सारा पैसा, द रिचनेस ऑफ money that we have, that is what wealth is. So yeah, let's read. Anyone wants to? I read today also. प्रिया बोल रहे हो? Yes, ma'am. अच्छा, प्रिया आप निकल पड़ा था। Anyone else would like to? नहीं तो कोई और नहीं करो। I can read. अच्छा, प्रिया इज इट ओके विजय जी पढ़े कल आप? Absolutely okay. Sure. You can Okay. read. हाँ जी विजय जी। From here, the ideal method. Yeah. The ideal method for building a wealth consciousness. Perhaps you are saying as you read this chapter, I need wealth and success. This is what you do. Repeat for about 5 minutes to yourself 3 or 4 times a day. Wealth, success, these words have tremendous power. They represent the inner power of subconscious mind. Anchor your mind on this substantial power within you. Then condition and circumstances corresponding to their nature and quality will be manifested in your life. You are not saying, I'm wealthy. You are dwelling on the real power within you. There is no conflict in the mind when you say wealth. Furthermore, the feeling of wealth will well up within you as you dwell on the idea of wealth. या सो इसमें जो हमको कल यही बताया था ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, कि आपको वो ब्लॉक्स आ जाते हैं एकदम से, आप बोलो आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी वेल्दी, और पता लगे हमारा बैंक बैलेंस अभी इतना नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक आ जाएगा कि अरे नहीं ये तो मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कैसे होगा, मतलब, या फिर नहीं ऐसे, मतलब दिल से नहीं निकलेगा वो, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं कि पहले अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करो और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हार्नेस करो। तो उस पावर को एक्टिवेट, देखो ये पावर तो है ही सबकॉन्शियस माइंड में ना, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है ये। इन्फिनिट मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है जितनी ये पावर है। तो उस पावर को पहले एक्टिवेट करो। वो बेचारी सो रही है वो पावर अभी, क्योंकि हम तो परेशानी में जीते हैं मोस्टली। मतलब कोई भी चीज हो जाती है हमें लगता है हाँ मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, अच्छा मैं वो कैसे करूंगी, पैसा कहाँ से आएगा, एक और प्रॉपर्टी खरीदनी तो है मुझे गुड़गांव में, मैं कैसे खरीदूंगी, अभी तो मेरे उस हिसाब से पैसे ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं वहां से ये कर भी दूंगी, मैं ईएमआई कैसे भरूंगी, इतनी इनकम है, वहां की भी ईएमआई जा रही है, कार की भी जा रही है। दिस इज हाउ पीपल थिंक। दैट इज अ नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग पैटर्न दैट वी आर ऑलवेज। जैसे कहीं पे भी हमको कोई दूसरा घर खरीदना, हम सोचेंगे चलो मैं ये बेच के फिर इतने में और पैसा ऐड करके फिर इतने का हो जाएगा।
This is very normal. This is the way every human being thinks, है ना? So we sometimes forget that we can be in the creation mode. Keep these two properties that you already have. तीसरी लो यार, मतलब ये दो भी रखो और एक और ले लो. क्रिएट करना है ना हम क्रिएशन, लेकिन हमको ये मेंटल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज होती है, मुझ में भी है ये. यू नो, इट इज नॉट दैट आई डोंट हैव, एज आई से, इट इज लाइक अ क्रूड रिमाइंडर टू मी आल्सो व्हेन आई एम रीडिंग. सो इट इज लाइक ये मेंटल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. तो इसके लिए है पहले कि पहले अपने सबकॉन्शियस की पावर को एक्टिवेट करो. वो जो इन्फिनिट अबंडेंस की जो पावर है, जो हम अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं खुल के, यू नो, यूज दैट. फर्स्ट एक्टिवेटेड. सो एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने बोला है कि दिन में 4 से 5 बार, ठीक है, सॉरी 3 और 4 टाइम्स, 3 और 4 टाइम्स मतलब 3 से 4 बार 5 मिनट के लिए ये तोते की तरह रटो. वेल्थ, सक्सेस. कुछ नहीं किया, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेरी सक्सेसफुल. ठीक है, ये सब नहीं बोलना है. बस ये शब्द बोलने हैं. शब्दों की पावर को हार्नेस करना है, क्योंकि शब्द में बहुत ताकत होती है. तो बस यही 2 चीजें बोलनी है और कुछ भी नहीं बोलना है. वेल्थ, सक्सेस. और 5 मिनट बोलते जाओ, बोलते जाओ. आपको टाइमर लगाना है, आप टाइमर लगा लो. ठीक है, और आंख बंद करके बोलते हो तो पावर ज्यादा आती है ना? आंख बंद करके जब बोलते हो तो फोकस बहुत आराम से होता है. सो यू कैन क्लोज योर आईज एंड यू कैन डू दिस 3 to 4 times. Let's do it 4 times only. Why not do it 5 times? 5 minutes, 5 times, easy to remember also, right? So ये हम करना अब से शुरू करेंगे अगर हमको वेल्थ और सक्सेस चाहिए तो. एंड वी विल सी दैट पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप दंग रह जाओगे कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के साथ पे. ठीक है, इतनी बढ़िया ये वाली प्रैक्टिस होती है. मैंने बहुत करी है इसको. अभी बीच में भूल गई थी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अलग अलग बुक्स पढ़ते. बट ये जब ये हमने किताब पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं पहले भी इन्हीं सेशंस में. सो तब मैंने बहुत प्रैक्टिस की है. और यू विल नॉट बिलीव कि मैंने आज करना शुरू किया है ना, मुझे एक ह्यूज चंक ऑफ मनी डे आफ्टर टुमारो मिला था. यू नो, मतलब आज प्रैक्टिस की मैंने, आज की, कल की, ये एग्जैक्टली जैसे इसमें लिखा हुआ है. एक दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन I got a huge amount of money from nowhere. You know, I did not know that that was even coming or that even existed. That was a gift from the universe because of infinite abundance which is there, you know, that the lying latent right now in the subconscious mind. So let's make that kinetic. Let's not keep that capacity of the subconscious mind so latent. ये कैपेसिटी है, आज हम उसको हिला रहे हैं, आज हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना, उसको काइनेटिक फोर्स दे रहे हैं. सो लेट्स डू दैट फ्रॉम टुडे. वेल्थ, सक्सेस, and then wait and be very excited and be in a good zone, you know, that yes, it's coming to us. I can tell you, मैंने जितनी बार भी ये diligently किया है, मैंने diligently ये बहुत बार नहीं किया है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मतलब चैप्टर खत्म हो जाता है आगे का कुछ और मैजिक बुक के प्रैक्टिसेस तो चल ही रहे है ना, तो मैं भूल जाती हूँ. जबकि रोंडा बर्न भी तो उसमें बार बार बोलती है ना, that words have got a power in them, harness their powers. So shabd, human beings are the only linguistic animals, and every word which is, you know, which is there has got a strong power attached to it. इसीलिए कहते हैं कि शब्दों को, जैसे बुद्धिज्म में लिखा हुआ है 9 thoughts to 1 word. You know, एक गोशो है, गोशो हमारी बुक होती है, उसमें लिखा हुआ है, और उसमें वो है 9 thoughts to 1 word, कि 9 बार सोचो एक शब्द बोलने के पहले. ठीक है, इतना ज्यादा वर्ड्स में पावर होती है. तो इमेजिन हम बिल्कुल आंख बंद करके ये 2 शब्द 5 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार बोल रहे हैं, एंड यू विल सी योर किस्मत. बट देन बी इन अ गुड फीलिंग जोन. ओके, मतलब ये नहीं कि आप फ्रीक्वेंसी लो चल रही है पूरे टाइम. And be very sure that this is going to happen. It's happened with me every time I have done it. I have seen छप्पर फाड़ के पैसे की बारिश, you know, and opportunities comes my way. This is how powerful it is. Okay, तो और इन शब्दों में ना रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें ये नहीं है रेजिस्टेंस की अरे अभी तो है नहीं मेरे पास, कैसे होगा, क्या होगा ना, ये ऐसी वाली रेजिस्टेंस नहीं है. मैम एक क्वेश्चन है प्लीज. हाँ, क्वेश्चन हम एंड में ले लें प्रिया. ओके मैम. हाँ जी विजय जी. Feeling of wealth produces wealth. Keep this in mind
at all times. Your subconscious mind is like a bank, a sort of universal financial institution. It magnifies whatever you deposit or impress upon it, whether it is the idea of wealth or of poverty. Choose wealth. मुझे मजा आ गया ये पैराग्राफ Yes. पढ़ के सुन के विजय जी, मजा आ गया मुझे पैराग्राफ। इसमें लिखा हुआ है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल बैंक है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो चीज आप डिपॉजिट करते हो ना, ये बहुत गुना मल्टीप्लाई होके आपको वापस आती है। तो ये जब जो छोटा सा एक्ट कर रहे हो ना कि दिन में 4 बार 3 बार आप मतलब 5 मिनट के लिए सिर्फ सक्सेस वेल्थ बोल रहे हो, ये आप डिपॉजिट कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड के बैंक में, ठीक है। और उसके बाद आप देखना कि कितना गुना मल्टीप्लाई होके आपकी जिंदगी में ये इमीडिएटली आना शुरू हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, मेरा दोनों बार आई हैव सीन लाइक ट्वाइस वी हैव डन दिस बुक, और दोनों बार आई सॉ an immediate difference in these particular sections in success and wealth. This is how powerful it is. So think that it is a bank. Now forever we need to think that subconscious mind is a bank. So whatever you're depositing is multiplying. So just think about, what are you depositing? Are you depositing worry? Okay, I hope you are not depositing worry. I hope you are not depositing thoughts of poverty, that मैं ये नहीं खरीद पाऊंगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये सारी चीजें इतनी महंगी क्यों होती हैं, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, हर महीने मुझे रेंट देना पड़ रहा है, हर महीने ये है, मेरा इतना सारा लोन जाता है, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल माउंट होता जा रहा है। ऐसे भी तो सोचते हैं ना हम। ये भी उस बैंक में जा रहा है और ये भी मल्टीप्लाई होके आएगा। तो इसका मतलब बुरे थॉट्स अगर आप डाल रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो भी मल्टीप्लाई होके आएंगे, क्योंकि वो बैंक है तो उसमें से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब अबंडेंट, इसी में लिखा हुआ है कि 2 चीज आप चूज कर सकते हो, एक पॉवर्टी, एक वेल्थ। सो पॉवर्टी नहीं चूज करना है ना, ऑब्वियसली हमको वेल्थ चूज करना है। सो इसमें लिखा हुआ है चूज वेल्थ, कीप डिपॉजिटिंग दीज थॉट्स, सक्सेस वेल्थ, सक्सेस वेल्थ, सक्सेस वेल्थ, एंड कॉन्स्टेंटली रिपीट इट। क्लोज योर आईज एंड डू दिस जस्ट फॉर 5 minutes and you will see a difference. हाँ जी। Why your affirmations for wealth fail? I've talked to many people during the past 35 years whose usual complaint is, I have said for weeks and months, I'm wealthy, I'm prosperous, and nothing has happened. I discovered that when they said, I'm prosperous, I'm wealthy, they felt within that they were lying to themselves. One man told me, I have affirmed that I am prosperous until I'm fired. I'm tired. Things are now worse. I knew when I made the statement that it was obviously not true. His statements were rejected by the conscious mind, and the very opposite of what he outwardly affirmed and claimed was made manifest. Your affirmation succeeds best when it is specific and when it does not produce a mental conflict or argument. Hence, the statement made by this man made matters worse because they suggested his lack. Your subconscious accepts what you really feel to be true, not just idle words or statements. The dominant idea or belief is always accepted by the subconscious mind. Yeah, thank you so much, Vijay ji, for reading this very, very important, significant part of this chapter. And it says that यही चीज मैं आपको आई थिंक 2-3 दिन से बता रही हूँ कि कभी ऐसी एफर्मेशंस होती हैं, आई एम सुपर रिच, आई एम वेरी प्रॉस्परस, और पता लगता है कि नहीं, मैं तो झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो अपने आप लैक की फीलिंग आ जाती है। तो हमको ऐसा कुछ नहीं बोलना है दैट लैक, जो मैंने आपको एफर्मेशन भी बताया, फिर रिमेंबर आई सेड माय इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इट इज नॉट दैट आई एम वेरी प्रॉस्परस, आई एम वेरी, बिकॉज ये जो होता है इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस वाली चीजें, लाइक अगर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं है, बट माय रिलेशनशिप्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर,
my communication skills are improving. So वो अभी चल रहा है धीरे धीरे, है ना. तो इस तरह के affirmation जिनमें resistance नहीं होता, because नहीं तो mental conflict हो जाती है कि ऐसा कैसे, ऐसे बोल बोल के ऐसे. तो this person इन्होंने जिसका example दिया है, उनका ये बोला है, वो पूरे दिन पैरट करता रहता था, I am wealthy, I am prosperous, I am very rich and I am this. He said कि नहीं, मेरी तो हालत और खराब हो गई उसके बाद बोल बोल के. That was because दिमाग में immediately lack आ जाता है that yes, I'm lying to myself. You know, this so hence don't do any affirmation that are not believable to you. जब magic check भी हमने भरा था तो हमने यही लिखा था ना कि जो आप believable amount भरो, start with as less as 5,000 rupees. क्योंकि वो जब हो जाएगा, because अगर suddenly 50 लाख लिखोगे तो उसमें resistance आएगा कि मेरे पास अभी 50,000 भी नहीं है और मैंने 50 लाख का चेक भरा हुआ है. ठीक है, तो उसमें वो believable ही नहीं होता. So hence it is very important to affirm things that like I'm getting better, to take the baby steps to reach where you want to be. That is what it is. तो इसीलिए इन्होंने ये 2 words लिए हैं. ये 2 words basically subconscious में imprint करने के लिए और subconscious की infinite power को activate करने के लिए, because इनमें resistance नहीं है. हमने कुछ amount नहीं डाला, I'm wealthy, I'm this, और बहुत पैसा आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं. हम बस ये बोल रहे हैं success, wealth, success, wealth. ठीक है, बहुत मतलब these words do not have a mental conflict, no psychological impediments. ठीक है, ये बहुत आराम से हम इसको बोल सकते हैं. और क्या दिन में 4 बार ही तो करना है, हम 5 बार कर लेते हैं. 5 बार 5 मिनट के लिए करके देखते हैं ना, 2-3 दिन, मजा आएगा, है ना. और while at the same time अपने आप को गुड फीलिंग जोन में रखना है, बिकॉज यूनिवर्सल लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी की ही होती है. अगर हम यूनिवर्स यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है. तो थोड़े से चिल हो जाओ लाइफ के लिए, जनरली ओवरऑल. ठीक है, थोड़े से चिल हो जाते हैं हम लोग. There is someone much above us and much more powerful than us taking care of everything in our life. हमको बस क्या बोलना है, लव, ग्रैटिट्यूड, उसमें रहना है, वो वाली फीलिंग. और जो प्रैक्टिसेस है हमारी आज की, दोनों प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है ना, ये वाली भी है और दूसरी वाली भी जो है, मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, where we are harnessing the power and the forces of the universe, you know, which is God. So we are becoming God, isn't it, by doing that practice. So इसी तरह से तो चलता है ना. जैसे समुद्र का पानी है, एक बकेट पानी आप निकालोगे तो उसमें समुद्र के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. मतलब it is as good as the ocean only, no, it is as good as the sea. उसमें सब कुछ वो होता है जो सी में होता है. हमने एक बकेट निकाला है तो हम उसकी एक बकेट है. जैसे यूनिवर्सल फोर्सेस की एक बकेट, एक यूनिट है हम, तो हम में भी वही पावर है एग्जैक्टली जो पूरे ओशन में, जो गॉड में. तो यही हम कर रहे हैं और आज हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं बोल के सक्सेस एंड वेल्थ, क्योंकि अभी हमारा मनी वाला चैप्टर चल रहा है. तो क्योंकि हमको वो इम्प्रिंट्स करने जरूरी है. और अगर अल्फा स्टेट में आप ये करते हो, लाइक बिल्कुल ही रिलैक्स्ड होके, ये करने के पहले थोड़े अच्छे से डीप ब्रीदिंग करो कुछ देर, 5 से 6, you know, deep inhalation and deep exhalation, या deep inhalation hold deep exhalation, फिर deep inhalation hold deep exhalation. तो उस तरह से अल्फा स्टेट माइंड एक्टिवेट हो जाएगी. तो सबकॉन्शियस का ढक्कन खुल जाता है जब आप अल्फा स्टेट में होते हो, है ना. और तब बहुत अच्छे से वेल्थ और सक्सेस घुस जाएगा अंदर, और वो यूनिवर्सल बैंक है, उसमें से फिर वो मल्टीप्लाई होकर आपको जिंदगी में सामने दिखेगा. तो दैट इज व्हाट इट इज. सो थैंक यू सो मच. हाँ जी प्रिया, आप पूछ रहे थे कुछ. मैम मेरी एक ये क्वेरी है कि जैसे आपने बताया था ना कि वेल्थ एंड सक्सेस हमें बोलना होता है, तो इसमें हमें क्या कुछ पर्टिकुलर अफर्मेशन लेके प्रैक्टिस करना है या जस्ट ऐसे ही? I think didn't I make that very clear? Like it is only these 2 words. न इसके आगे कुछ, न इसके पीछे कुछ. ठीक है, just this. And but be in a joyful alpha state. Like it should be like calm and peaceful. तब ये करना. And you will see it happening. अगर आपको सक्सेस के लिए कोई इंसान मिलना होगा जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंटल होगा आपका बिजनेस सेटअप, आपको वो मिल जाएगा. आपका अगर कोई रुका हुआ फंड्स हैं जो नहीं रिलीज हो रहे थे, आपके वो रिलीज हो जाएंगे. अगर कहीं से आपको लग रहा है कि कुछ काम नहीं बन पा रहा है, वो काम बन जाएगा. बट वो रास्ते के ब्लॉकेजेस सारे हट जाएंगे और आप दौड़ पड़ोगे उस पे. यू नो, दैट्स व्हाट यू विल सी मेनी चेंजेस हैपनिंग व्हेन यू कीप डूइंग दीज 2 I mean, like it's not affirmation, they're just, you know, you imprinting these 2 words into the subconscious mind. Okay. Ma'am, I also wanted to ask one thing, ki if we are doing it for wealth and success, so we can do it for anything. Yeah, of course. So we've already done the For health health chapter. or For for health, we have anything done like that, health, yeah. whole, heal, complete.
that I'm very grateful that my body is getting better and better. You know, every day my cells are whole, he is healing, as you know, my immune system is working so well, my body is whole, healed, complete and in harmony, all the cells are getting in harmony with each other. ये सब हमने हेल्थ का ऑलरेडी कर लिया है, अभी हम मनी का कर रहे हैं, क्योंकि मनी में रेजिस्टेंस बहुत आता है. इस वजह से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमको प्रोग्रेसिव बनाना है, मतलब वो धक्का लगाना है एक बार, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस होता है लोगों का सक्सेस, और उसमें लगता है कि भाई आई हैव नेवर अर्न you know 10 lakhs in a month, how can I do it, I want to become successful but I don't know how. तो अबंडेंट माइंडसेट नहीं हो पाता है वो वेल्थ कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करने के लिए. अभी हम सेंटेंस यूज नहीं करें, अभी करेंगे, अभी हैं चैप्टर्स, इसमें बहुत वंडरफुल एफर्मेशंस हैं, लेकिन पहले हमको एक्टिवेट तो करें हम अपने सबकॉन्शियस को जो अभी ब्लॉक्ड है. यू नो, मे बी देयर इज अ रेजिस्टेंस. देखो, अगर ऑथर ने इस तरह से लिखा है ना, उनको बहुत अच्छे से ह्यूमन माइंडसेट का मालूम है कि क्या है हमारा थॉट प्रोसेस, तो इसीलिए उन्होंने पहले अपने दिमाग के लिड को खोला है आज ये. उसके बाद अभी आएंगी एफर्मेशन, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो एफर्मेशन मेरी अभी भी लिखी हुई है, so which I do also. So इसमें वेल्थ की एफर्मेशंस अभी आएंगी, वैसे ही हेल्थ के लिए यूज करो, और रिलेशनशिप्स और उन सब का सेल्फ लव के चैप्टर्स अभी आने वाले हैं. अभी तो हम सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक पे ही है. मैम मेरी बहुत एक सारे. Okay, ma'am. Thank you. एक और क्वेरी है मैम मेरी. जैसे आपने एक सेंटेंस यूज किया था ना, 9 थॉट्स टू 1 वर्ड, आपने एक बुक का नाम रेफर किया था, गोशो. नहीं, वो एक्चुअली जो लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है, कंपाइल्ड गोशो है जो बुद्धिज्म जिन्होंने नेचुरल दार्शनिक किया था, तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को लेटर्स लिखे थे, तो वो लेटर्स का कंपाइलेशन है जो बुद्धिज्म में पढ़ते हैं हम. हर महीने गोशो लेक्चर होता है, विच मेरे चैप्टर के लिए मैं लेती हूँ. सो उसमें ये लिखा हुआ है एक चैप्टर में 9 थॉट्स टू 1 वर्ड. तो मतलब एक शब्द निकालने के पहले 9 बार सोचो, बिकॉज शब्दों में इतनी पावर होती है कि जैसे ही आपने शब्द बोले वो पूरे हो जाते हैं. जैसे हमने इस किताब में भी पढ़ा है ना, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में, कि वो बार बार वो आदमी बोलता था अपनी बेटी के लिए, उसकी बेटी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और वो क्रिपलिंग था, मतलब शी कुड नॉट वॉक एंड ऑल दैट. तो बार बार बोलता था, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, और छोटी सी बिटिया थी उसकी 5-6 साल की, तो बार बार ये बोलता था दैट यू नो आई रियली वांट माय डॉटर टू बी वेल एंड आई कैन गिव अप माय राइट आर्म फॉर माय डॉटर्स हेल्थ. ओके, तो बार बार ये बोलता था, और उसका डोमिनेंट थॉट ये होता था दैट आई कैन गिव माय राइट आर्म फॉर माय डॉटर्स हेल्थ. और उसके बाद उनका कहीं पे गाड़ी से वो घूमने जा रहे थे, कार क्रैश हुआ और उनका राइट हैंड को एम्प्यूट करना पड़ा, और उसके बाद उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई. इतनी ज्यादा पावर होती है वर्ड्स में. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. तो मैम ये जो कोटेशन का आप रेफर कर रहे हैं, तो जस्ट आई एम आस्किंग लाइक कि ये हम भी, मतलब जो लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो भी रीड कर सकते हैं या कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं क्या ये रीड करने? नहीं, देयर इज अ प्रोसेस उसके लिए. बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना है तो मैं ऑफलाइन आपको बता दूंगी कैसे करते हैं. ठीक है, श्योर. थैंक यू मैम, थैंक यू. ऑलराइट. हाँ, सपना बोलो. मैम सपना. मैम या मैम क्या जो प्रैक्टिस आप जो वेल्थ की और सक्सेस की बता रहे हो, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? कौन से? वेल्थ एंड दूसरों सक्सेस. सक्सेस हम क्या ये चैंट दूसरों के लिए भी कर सकते हैं या वेल्थ सिर्फ एंड अपने लिए? सक्सेस का यस नहीं, मैम. आप विजुअलाइजेशन दूसरों के लिए कर सकते हो, उसके लिए आप कल तक की वेट करो. कल मैजिक बुक में मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है. फिर उसमें आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किसी के लाइफ में अगर आपको वेल्थ एंड सक्सेस लेके आनी है तो आपको क्या करना है. ठीक है, तो कल वाला चैप्टर हमारा वो ये द मैजिक वॉन्ड, यानी कि आप सपना जादू की छड़ी हो, और अब आप अपनी जादू की छड़ी यानी कि अपनी जिंदगी को यूज करते हुए कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को परफेक्ट रेजोल्यूशन दोगे. ठीक है, वो कल का उसमें चैप्टर है. ये वाला खुद के लिए है, वेल्थ एंड सक्सेस. आज वाला ये वाला जो था पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. ओके मैम. Deepti, I just have one query. हाँ जी. Is it possible that we can have one guided meditation by you? If it is हाँ possible. हाँ, sure, we'll do it sometime, but then that we'll do in the night at 9 o'clock. Yeah, sure. हाँ, ठीक है, before we get into that sleeping state. ठीक है, Thank we'll have you. a guided meditation. I'll do that. Thank you. Yeah, so I'm here in Delhi till Wednesday and we'll try and do it, or maybe next Saturday.
है ना? Maybe Ma'am, she'll start today. हाँ जी. मैम रेनू मैम, ये actually I missed that 2 words जो आपने कहा ना कि वो 4 to 5 minutes करने हैं daily. Wealth, success. So ma'am, we have to do continuously for 4 to 5 minutes. Yeah. Okay, so You we can do listen like to the YouTube video because today's chapters in both the books were very, very good, very powerful. Okay, even the magical air that you breathe wala jo tha, that was also really nice, very profound chapter. So you can go to the, अभी प्रिया डाल देगी थोड़ी देर में, तो आप YouTube पे ये पूरा देख लेना अगर आपका मिस हो गया था तो मैम आउट लाउड बोलना है या मन में भी बोल सकते हैं, like while walking and all? नहीं, while walking and all, subconscious mind के लिए alpha state में होना जरूरी होता है. ठीक है? That means your body and your mind has to be calm and peaceful. Alpha state of mind is when the brain's not working and the body is also not working that time. तब alpha state में हम होते हैं. जैसे रात को सोने के just पहले जब नींद आ रही होती है बहुत जोर की, या सुबह उठते से ही एकदम से जब तक हमारा ये दिमाग नहीं जाता है लाइट जलानी है, चाय पीनी है, चप्पल कहाँ है मेरी, गीजर ऑन हुआ कि नहीं, उसके पहले जब हम बेड में ही होते हैं, दैट टाइम वी आर इन द अल्फा स्टेट. दैट मीन्स योर बॉडी इज काम एंड योर माइंड इज काम. और दिन को जब हम करते हैं तो हमको बॉडी को काम करना होता है, हमको अल्फा स्टेट में डालना पड़ेगा अपने आप को. डीप ब्रीदिंग इज द फास्टेस्ट टेक्निक बाय विच यू कैन पुट योर बॉडी इन द अल्फा स्टेट ऑफ माइंड. अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में नहीं तो वो बीटा में चले जाते हैं हम. अल्फा के बाद होता है बीटा जब ये चलने लग जाता है, एक बार मैं उठ जाती हूँ, मैं चाय का पानी चढ़ा देती हूँ, गैस पे रख देती हूँ, ओके लेट मी जस्ट एंड लेट मी पुट ऑन द लाइट, ओ वेयर इज माय सो एंड सो थिंग, मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल का है, मैंने रात को लिखा था, इसका मतलब बीटा में चले गए. उसके बाद और आपको ख्याल आते हैं, फोन पिकअप कर लिया, बीटा प्लस में चले गए. ठीक है? और सबकॉन्शियस माइंड का ढक्कन बंद हो जाता है उस टाइम, जैसे ही आप बीटा में जाते हो. तो इसलिए आप चलते चलते इसको नहीं कर सकते. आप ऐसे कुछ काम करते करते आप बोल रहे हो, जैसे सपोज यू कुकिंग समथिंग, मेकिंग एन ऑमलेट, और उस टाइम आप बोल रहे हो well success, it will not penetrate. We have to ingrain it in the subconscious mind. तो उसके लिए आपको calm state में, Dr. Murphy calls it sleepy drowsy state, है ना? That's what alpha state is. He just wanted to keep it uncomplicated, so he calls it get into the sleepy drowsy state. So yeah, you have to be calm. ठीक है? So we'll just. मैम 5 minutes के लिए बोला Sapna ना? was asking something. हाँ, 5 minutes के लिए बोलना है. हाँ जी. Ma'am, Sapna's hand was raised. She wanted to ask something maybe. हाँ, सपना बोलो. मैंने तो बोला था, I called out her name because I saw her hand was raised. हाँ, फिर वो कोई और बोल पड़ा ना, फिर बोली. कहाँ है पता नहीं. Sapna, she's there. I can see her name on the screen with the camera off. Sapna, you want to speak? Wait, I'll just put the. मैम मैंने पूछ लिया था क्वेश्चन, सॉरी. अच्छा, मैं पूछ लिया था इन्होंने. हाँ, ठीक है, I चलो. was sharing. Sorry. Yes, Meetu, hi. You want to share something? Yeah, like yesterday we returned from a vacation na, so airport se when the driver came to take us, we kept all the luggage. We came home, so Rishabh ka suitcase वो airport पे भूल गया driver, लेके ही नहीं आया वहाँ से. So when we reached home, Rishabh बोला मेरा तो बक्सा आया नहीं वापस, अब क्या करें? वापस he returned to the airport. तो वहाँ पे तो cameras लगे रहते ना, and then it was an unattended luggage, so they had kept it in that lost and found counter. And Rishabh showed his again passport and his ticket that I just traveled on this flight and my luggage got missing. But पहले तो उसको डर लग रहा था ना, इतना बड़ा एयरपोर्ट पे कहीं भी गायब हो सकता है. It was not inside the premises, it was outside where the cabs and all are waiting. The driver forgot to keep it from there, मतलब वहाँ से रखने में भूल गया. तो ऐसे don't worry ऋषभ, हम लोग थैंक यू कहते हैं यूनिवर्स में, इसमें भी कुछ कोई अच्छा ही होगा हम लोग का. तो फिर he went all the way back and he got it. जब तक नहीं मिला तो उसको तो बहुत डर लग रहा था. Wonderful, yeah. It was quite unbelievable कि उसका एक छोटा सा बक्सा it was lying there at the security. And your Calcutta airport is so crowded, like. Yes. And it was outside, it was not inside the premises of the airport. Outside where the taxis and all come, na? Yeah. So on the road it was, on the road. Wonderful. Thankfully. So Rishabh already has that ink of gratitude always in his heart. And yeah, then, when I was praying, he's so nice, he's taking me all the way to Singapore, made me travel. So yeah. well, इसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, गड़बड़ कुछ. Yeah, मिल गया. wonderful. Yeah. आप तो मीतू वैसे alchemist बन गए हो. वहाँ से मिलना is miracle, is no less than miracle. Why? The security people checked in the camera, na, they saw the car number, they saw Rishabh carrying that luggage, and they saw that
it's there. And immediately when the moment we came home, देखिए उसका बक्सा नहीं है, तो तुरंत वो वापस एयरपोर्ट उसी वापस चला गया 1 घंटे के अंदर. वंडरफुल. दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. आपको याद है ना, मेरा तो सब कुछ वो लखनऊ एयरपोर्ट पे पूरा मेरा चार्जर, मेरा पावर बैंक्स, एवरीथिंग वाज लाइक आई डिडंट हैव एनी ऑफ माय चार्जर्स, माय वॉच चार्जर, everything was in a tray. That tray went missing. And imagine I went to Patna from there, like the same day, उसी वक्त फ्लाइट लिया, और पटना से 4 घंटे के बाद I came back to Delhi. And in Delhi next morning, so Friday night I came back, and Saturday I was just writing. I wrote 100 blessings, for the airport, for the staff of the airport, for my charger, for the whole organization, for the system, for the flight, for people working in the flight. So I wrote 100 blessings same evening. And the next morning I got a call from Lucknow airport, because I had left my number behind. So that number, इतने सारे लोगों में तो मिस हो सकता था ना, वैसे तो बहुत लोग नंबर छोड़ के जाते होंगे. I got a call back that all your things are with us and you need to, email your Aadhaar card ki copy and this, and, we'll courier the whole thing back to you. And then I got it on Sunday. So I told the universe on Friday night itself that I know that, by Sunday evening, I'm going to have it. And I got it like that. So yeah, gratitude has that power that we don't need to. And I was not sweating about it at all. I knew that it's going to come. So what Meetu said, that, you just say thank you, that, for the whole journey, for this, for that, and everything falls into place. That's how easy it is. But you have to keep yourself in the good feeling zone also. Worry is below the line. So yeah, that we have to remember also. Yeah, thank you, Meetu, for sharing. And bye-bye. Have a beautiful Sunday. Thank you, ma'am. Have a brilliant Bye. day. You can do your full moon scripting, meditation, whatever करना it is, affirmations, yeah, whatever it is. गुड मॉर्निंग मैम. आज तो वैसे भी बहुत. हाँ जी दीपा. हाँ हाय मैम, कांग्रेचुलेशन मैम. आपको अवार्ड मिला अच्छा, सिंगापुर वाला. अवार्ड का. ओके, हाँ थैंक यू. या हाँ. और थैंक यू फिर सो मैम मच. लास्ट 15 डेज मैं भी थाईलैंड की ट्रिप पे थी. तो जब अनु मैम ने शेयर किया था वो उनकी सिंगापुर वाली ट्रिप, तभी मैं जा रही थी. तो फिर मैंने भी सोच लिया था. तो फिर ग्रेटिट्यूड वॉक, मैजिक इंग्रेडिएंट्स, मैग्निफिसेंट आउटकम, मैजिक एयर, सब मैम बहुत अच्छा रहा. और मुझे सभी जगह शॉपिंग में भी मेरे हस्बैंड ने कभी भी नहीं ये नहीं लेना है, वो कुछ आया ही नहीं. वो आपका सुनते सुनते घर में, हाँ तुम ले लो, हमें तो सब अच्छा, हम लग्जरी सब ले सकते हैं, आप सब ले लो. वेरी गुड, ग्रेट, कांग्रेट्स. सब ले मैम लो. यही है. परिवार हमारे साथ है ना. कहीं भी ना नहीं कुछ नहीं, मैंने बोला ये ले लूं महेश, नहीं नहीं आप ले लो. और फिर मैंने वहां नेट नहीं बहुत आता था, क्या होटल में आता था, फिर हम बाहर निकल जाते थे, वो सफारी वफारी सब कुछ भी होता था बीच पर, तो नेट नहीं आता था. तो मैंने एक बार आपका सिंगापुर वाला वो मैसेज देखा था, मैंने बोला मैम तो हमारे नजदीक में ही है, चलो चलते हैं मैम से मिलने. हाँ. मैंने बोला मैम भी यहीं पे आए, हम भी थाईलैंड में. आ हाँ रही हाँ हूँ, मैम मैं आपके नजदीक ही आ रही हूँ, अहमदाबाद आ रही हूँ हाँ वो थर्सडे पियाली मैम ने को. बोला. हाँ पर मैम मुझे फिर हम 5 फैमिली ऑफ डॉक्टर गए थे. तो फिर थोड़ा होता है ना, बच्चे साथ में 8-10 है, तो थोड़ा मेरा भी छोटा है, तो थोड़ा ऐसा होता है कि रूम के प्रॉब्लम्स होते हैं. और थाईलैंड में थोड़ा मुझे ऐसा था कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना. फैमिली में 5 फैमिली में कुछ ऐसा नहीं. तो मैंने बस ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को बोलते हैं ना कि सरेंडर हो जाना, तो मैंने बोल दिया था ये नहीं होना चाहिए. तो फिर वैसे ही हुआ. और मैम एक तो जबरदस्त चीज वो हुई कि मैं जब गई ना, तो मेरे नेल पे, वैसे प्लेटफॉर्म पर हम खड़े थे, तो एक बर्तन गिर गया था, तो मेरे नेल पर ऐसे हार्म हो गया था कि वो मुझे पेन कर रहा था. तो मैंने बोला मैं शूज और मुझे सैंडल और क्रॉक्स पहनना है, तो मैं कैसे. तो मैंने बोला कुछ मुझे नहीं. तो मैं जब गई 15 दिन मुझे कुछ भी नेल पे नहीं हुआ. कल मैं आई तो मेरा एकदम से नेल निकल गया. मैंने बोला इतना सब हुआ तो मुझे कुछ भी फर्क, मैंने बोला था कि अब 2 दिन पेन हुआ है, मुझे वहां थाईलैंड पे कुछ नहीं होना चाहिए यूनिवर्स. तो बिल्कुल भी मैम कुछ नहीं. और कल मैंने एकदम से वो नेल पॉलिश रिमूव की, तो मैंने देखा तो नेल तो एकदम से ऊपर आ गया, पर मुझे 15 दिन कुछ मैम फील नहीं हुआ. तो फिर मैम वो तो पता नहीं कि यूनिवर्स ने जो भी मैंने बोला वो सब कर दिया. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. और फिर मेरी एक शॉप थी, तो वहां उसके पे मैं ग्रेटिट्यूड लिख, इतना मैं असाइनमेंट मेरा नहीं हुआ मैम, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल भी नहीं सकती कि सब पूरे हो गए हैं मैम, ये होना ही चाहिए. तो फिर मेरी एक शॉप थी, तो वहां पे मैं रेंटर चाहिए थे. तो फिर एविएशन सेंटर का हम कल उसका सारी अमाउंट में कि नहीं इतना रेंट के, इतना हमें जो मैंने लिखा था उतने रेंट में मुझे वो एविएशन सेंटर वाला मुझे रेंटर भी मिल गया.
फिर मेरी मम्मी तो मैं कल घर पे आके गई तो वो भी अब खाने में मैम कि नहीं नहीं ये तो मुझे मूंग की दाल उसको नहीं डाइजेस्ट होती थी कि नहीं अब मैं ऐसे बोल के खाती हूँ कि नहीं ये मुझे डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैम वो भी 20% ग्रेटिट्यूड के सेशन में आ गई है तो मैम वेरी मच हैप्पी कि वो उन्होंने सब तो मैं सोच एक्सपीरियंस भी रही हूँ अपना कि शेयर किया था, उन्होंने तो हाँ अपनी विक्ट्री भी शेयर की थी। हाँ मैम फिर कल मैंने उसको फिर से वो निकल गई थी मैं थाईलैंड में थी तो मैं फिर से ऐड करवाया मेरी डॉटर को भी ऐड करवाया मेरे हस्बैंड भी वो सुनते कि मैंने बोला आप भी कभी बोलता है कि मुझे ऐड कराओ तो मैं भूल जाती थी कल उनको भी ऐड करवाया तो फिर नहीं मैम वो सब भी वैसे ये यूट्यूब पे भी आता है अगर वो सुबह नहीं सुन पाते तो। हाँ मैम और वो यूट्यूब पे जाके जो सर्च है उसमें मैजिक्स एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा हाँ करके आप टाइप करोगे और उसको सब्सक्राइब करोगे तो वो आता रहेगा रोज रोज का साथ साथ, हाँ है वो ना। भी मैंने मम्मी को करवा दिया है उनको यूट्यूब में क्या पता नहीं चलता क्या उनकी वो सारी वो एक भैया ऑस्ट्रेलिया गया और मम्मी पापा की क्या एज के वाइज एक थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है ये मैं बोलती हूँ वो नहीं करते वो बोलती है मैं नहीं करता मैंने बोला तू कुछ नहीं कर अब ग्रेटिट्यूड के सेशन में रहो और अपनी बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलो तो क्या एक टाइग्रेस होती है ना आप आफ्टर 40 हमारे में एक टाइग्रेस निकलती है कि नहीं बहुत हम तो सारी ऐसा टाइग्रेसेस करेंगे हैं यहाँ पे ऐसा आप अब 40 ऐसा होना नहीं चाहिए मैं तो वो ही करूंगी सारे तो बिलो अब 40 उसमें वो निकल टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस हैं। तो फिर मैम कल मैं गई तो उसके उसके वर्ड्स भी ऐसे थे आपके पापा ने ऐसा बोला है मैं तो ऐसा ही करूंगी मैंने बोला अब तो मैं ऐसा ही करूंगी मैंने बोला अच्छा चलो अब तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाती है वो पता नहीं जो भी हो आ गया है वो तो मुझे मैम वेरी मच हैप्पी कि वो अब बोल जाती थैंक यू मैम आपने पूरी फैमिली को इल्यूमिनेट कर दिया। थैंक यू हाँ इसके लिए, थैंक थैंक यू। यू वो दीपा आपकी आपको कुछ वजह बोलना है, आपका हैंड रेज्ड है। मैम मुझे ये कहना था कि मेरी ना एक फुट की फिंगर में बहुत टाइम से मतलब वो येलो थी मतलब उसका नेल येलो था और प्लस उसमें ऐसा कुछ ना कुछ मींस फंगल इन्फेक्शन टाइप का मुझे हमेशा लगता था बट वो क्योर नहीं हो पा रही थी मैम बट मैंने कल मार्क किया मैम वो 95% ठीक हो गई है अपने आप मतलब मैं यही सोच रही थी मैं नो इतने दिनों मेडिकेशन, नो मेडिकेशन मैम फंगल खाना पड़ता है। हाँ, अच्छी बात है ना बहुत अच्छा। और क्या चाहिए, यही तो है बॉडी की अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करके रखो। दैट इज व्हाट इट इज ऑल एंड अबाउट। थैंक टू प्रिया ऑल्सो बिकॉज मैंने इनसे कुछ डिस्कस किया था अपनी हेल्थ को लेके एंड शी गाइडेड मी सो प्रॉपरली मतलब वो मुझे बहुत हेल्प की सब प्रिया ही मैनेज करती है। मुझे तो पता ही नहीं क्या हो हम रहा लोग सारे एक है। दूसरे को पकड़ के रखेंगे ना, इसीलिए तो वी आर ऑल होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स ना। कभी कोई yes भी yes of course होता है ना डीरेल होते ही हम लोग फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर से वापस ऑन द ट्रैक आ जाते हैं। थैंक यू नहीं, सो ये जो मच। यूट्यूब वीडियोस और ये उनमें भी कारीगरी करते रहना, कैसे क्या करना है सब कुछ, ये वो यही करती है। कभी मैं हाँ ये देखती हूँ फोटो आ बहुत रही थी किसी की, कल स्क्रिप्ट आ रही थी उसमें साथ साथ, तो वो सब यस यही करती रहती हाँ, मैं है। कोशिश कर रही थी फॉर कि ऑल ना ऑफ अस। सब टाइटल्स भी आ जाए ना, मैं हाँ, कोशिश अब सब टाइटल्स भी आ रहे थे, कुछ कुछ आता रहता है, तो मैंने कहा बस यही मैडम लगी हुई है और डिलीजेंटली काम एक करने। चीज और थी मैम मैंने एक साड़ी देखी थी ऑनलाइन रॉ मैंगो की तो मैं फिर भूल गई जब मैं उसके स्टोर पे गई और सम हाउ मतलब वो मुझे साड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी तो मैम जब मैं स्टोर पे गई मैंने और साड़ियां देखी और एकदम से वो साड़ी मेरे सामने आ गई मैम और मैं उसको ले भी आई वाह, ग्रेट। वाओ, रॉन्डा बन की स्कर्ट की कहानी हो गई ये तो ना। हाँ वही वाली, ये कि वो हॉर्न कर रहा था, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि इनको वो स्कर्ट चाहिए थी, क्योंकि वो वहां पे रुकी, फिर उन्होंने देखा राइट साइड पे वो स्कर्ट थी उनकी, तो मैम वो तो खैर ड्राइवर बहुत उनका बड़ी भगवान का रूप लेके आया हुआ था जो रैश ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे होती है जिंदगी में, तो आपकी वो साड़ी की कहानी। ऑल राइट, चलो देन let's थैंक यू थैंक यू get मैम, going थैंक for यू सो today, मच। and Have thank a you good day, so ma'am. much. Thank you so much. Bye bye. great Bye, day Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. Bye Bye। bye.